A very good morning to all of you. Welcome to the computer class. I am your computer teacher Sukriti and today we are going to discuss further in this chapter. So students, first of all, I hope that all of you are fine at your places, and it's also advisable to all of you that you please wear masks whenever you step outside. Okay, so students, before going further in this chapter, let's just revise a few key points that we discussed in the previous videos. So first of all, we started this chapter with the introduction of computer. In this chapter, we talked about what is a computer. Okay, after that, we talked about the different terms that are related to computer. I told you about what is data, what are instructions, what is processing, then what is information, storage, user, hardware, software, network and internet. So we discussed about all these terms. After that, we discussed about the benefits of using a computer. We talked about that what are the different benefits when we use a computer. So these were speed, quality, reliability, storage capability and versatility. After that, I told you that we have four steps in which our computer work. So these steps were input, processing, output and storing. So in input, we talked about how we give input to the computer by using the different input devices. After that, by providing some kind of input, the processor does some kind of processing, and after the processing those things, our output devices gives a kind of output which is then stored in the computer's hard disk or storage devices. Okay, so after that, we talked about the different input devices. So as all of you know that input devices are those devices through which we give some kind of input or commands to our computer. Okay, so in these input devices, we discussed about the keyboard, we discussed about the different types of keyboards like wireless keyboard, compact keyboard, virtual keyboard and braille keyboard. After discussing about the keyboard, we discussed about the mouse. That mouse is a pointing device, and also we discussed about the different types of mouse, that is mechanical mouse, optical mouse, wireless mouse, air mouse and touch mouse. And also we discussed about the different input devices which we use with our computer. So these were touchpad, joystick, graphic tablet, touch screen. Okay students, so we have discussed about this input device, and also we discussed about the motion input, digital camera, microphone, scanner, barcode reader, and then finally we discussed about the magnetic ink character recognition reader, which is also known as MICR reader. Okay, so students, we have discussed till now. So today we are going to discuss about the output devices. So what are the output devices? So all of you know that when we give input to the computer, our computer does some kind of processing, and after processing those data or instructions, we get some sort of output or result which are shown with the help of output devices. So an output device is any hardware component that convey information to a user. तो आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं? आउटपुट डिवाइसेस वो कोई हार्डवेयर कंपोनेंट होता है. हार्डवेयर कंपोनेंट मीन्स एनी कंपोनेंट विच कैन बी टच्ड और फेल्ट. ओके, सो ऐसा हार्डवेयर कंपोनेंट जो कि आपके यूज़र को इन्फॉर्मेशन कन्वे करता है, जो भी किसी भी काइंड की इन्फॉर्मेशन है, अगर वो जो यूज़र को बताता है तो उस हार्डवेयर कंपोनेंट को हम आउटपुट डिवाइस बोलते हैं. The different output devices are. So now we will study about the different type of output devices. Okay, so first comes monitor. So monitor, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, आप इतने टाइम से you have been seeing monitor all around you. So अब पढ़ते हैं monitor के बारे में. Monitor is an output device that looks like your TV screen. ठीक है, जो आपके पास मॉनिटर होता है दैट इज़ ए काइंड ऑफ आउटपुट डिवाइस जो आपके बिल्कुल टीवी स्क्रीन्स के जैसे लगता है.
It displays the work done by you or the information you get after processing. जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनपुट हम जब भी कंप्यूटर को देते हैं उसके बाद कुछ प्रोसेसिंग होती है, और उस प्रोसेसिंग के बाद जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन जो भी आती है वो आपकी किसी आउटपुट डिवाइस पर आती है। ठीक है, तो जो भी आप काम करते हो वो सब कुछ मॉनिटर स्क्रीन पर शो होता है। इंफॉर्मेशन ऑन मॉनिटर एग्जिस्ट इलेक्ट्रॉनिकली। ठीक है, जो भी आपके मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर जो भी कोई इन्फॉर्मेशन आती है वो इलेक्ट्रॉनिकली आती है एंड इज़ डिस्प्लेड फॉर अ टेम्प्रेरी पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, जैसे आप टीवी स्क्रीन्स पे देखते हो, आप मॉनिटर स्क्रीन्स पे देखते हो, जो भी रिजल्ट आता है वो एक टेम्प्रेरी फेज़ के लिए आता है, टेम्प्रेरी एक थोड़े फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड्स के लिए आता है, थोड़े टाइम के लिए ही आता है। फॉर दिस रीज़न इंफॉर्मेशन ऑन द मॉनिटर इज़ ऑल्सो रेफर टू एज सॉफ्ट कॉपी। ठीक है, तो जो भी इंफॉर्मेशन हम अपनी मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर देखते हैं उसको हम जनरली सॉफ्ट कॉपी भी बोल देते हैं। ठीक है, मॉनिटर इज़ ऑल्सो नोन एज स्क्रीन, डिस्प्ले, वीडियो डिस्प्ले यूनिट। इसीलिए हम मॉनिटर को स्क्रीन भी बोल सकते हैं, डिस्प्ले भी बोल सकते हैं, या फिर वीडियो भी बोल सकते हैं। वीडियो स्टैंड्स फॉर वीडियो डिस्प्ले यूनिट। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट मॉनिटर, कि हमने मॉनिटर में क्या पढ़ा कि ये टीवी स्क्रीन्स की तरह ही लगता है, और जो भी इंफॉर्मेशन हमारी प्रोसेसिंग के बाद निकलती है वो हम मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। तो मॉनिटर को हम स्क्रीन भी बोल सकते हैं, डिस्प्ले भी बोल सकते हैं, और वीडियो डिस्प्ले यूनिट भी बोल सकते हैं। ओके, आफ्टर मॉनिटर देयर कम्स अनदर टाइप ऑफ आउटपुट डिवाइस विच इज़ नोन एज प्रिंटर। सो यू हैव बीन सीइंग प्रिंटर्स ऑल अराउंड यू फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। आप सभी ने देखा होगा कि प्रिंटर की हेल्प से हम क्या करते हैं। तो आइए चलिए पढ़ते हैं कि प्रिंटर्स क्या होते हैं। Printer is an output device that gives you the output on a physical medium such as paper called printouts. ठीक है, तो प्रिंटर उस टाइप के आउटपुट डिवाइस होते हैं जिसमें जो आपका आउटपुट है, जो भी आपका आउटपुट है वो किसी फिजिकल मीडियम के ऊपर आता है। जैसे कि प्रिंटर की हेल्प से आप कैसे क्या करते हो, आप प्रिंटर के अंदर पेपर्स इंसर्ट करते हो, और जो भी आपका आउटपुट आया है, वेदर यू हैव मेड सम काइंड ऑफ कैलकुलेशन, वेदर यू हैव टू प्रिंट टेक अ प्रिंट ऑफ सम इमेज, तो वो आपके किसी पेपर के ऊपर आ जाता है जिसको हम प्रिंट आउट्स भी बोलते हैं। फाइन, द इंफॉर्मेशन वी गेट एज प्रिंट आउट ऑन ए पेपर इज कॉल्ड हार्ड कॉपी। ठीक है, तो हमने मॉनिटर स्क्रीन्स में क्या पढ़ा था कि जो मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन है आउटपुट शो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सॉफ्ट कॉपी। लेकिन जो इंफॉर्मेशन हम प्रिंट पेपर के ऊपर प्रिंट आउट के फॉर्म में लेते हैं उसको हम हार्ड कॉपी भी बोलते हैं। ओके, प्रिंटर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। अब प्रिंटर जो है हमारे पास 2 कैटेगरीज में क्लासिफाइड है। फर्स्ट प्रिंटर इज़ नोन एज इम्पैक्ट प्रिंटर एंड द सेकेंड प्रिंटर इज़ नोन एज नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। Printers that have direct contact between printer head and paper are known as impact printers. तो impact printers क्या होते हैं? impact printers वो printers होते हैं जिनका डायरेक्ट कांटेक्ट होता है प्रिंटर हेड और पेपर के बीच में। ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर्स। एंड द प्रिंटर्स दैट डू नॉट हैव डायरेक्ट कांटेक्ट बिटवीन प्रिंटर हेड एंड पेपर आर नोन एज नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। और वो प्रिंटर्स जिनका कोई भी डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता, जो आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होते, कांटेक्ट में नहीं होते, उनको हम बोलते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। ओके स्टूडेंट्स, ओके, सो नाउ कम्स टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स। तो अभी तक हमने पढ़ा कि प्रिंटर क्या होता है और हमारे पास 2 टाइप के प्रिंटर्स कौन कौन से होते हैं। हमने पढ़ा इम्पैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नाउ वी कम टू द टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स। सो द फर्स्ट टाइप ऑफ प्रिंटर दैट इज लेज़र प्रिंटर। ओके, सो दिस टाइप ऑफ प्रिंटर इज़ अ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। जैसे हमने पढ़ा कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, वो प्रिंटर जो कि आपस में जिनका डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता प्रिंटर हेड और पेपर के बीच में, उनको हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स बोलते हैं। तो लेज़र प्रिंटर इज़ अ टाइप ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। सो दिस टाइप ऑफ प्रिंटर यूजेस लेज़र टेक्नोलॉजी। तो ये जो प्रिंटर है, जैसे कि इसका नेम सजेस्ट कर रहा है, ये वाला जो प्रिंटर है इसमें लेज़र टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम किसी भी टेक्स्ट या इमेजेस को पेपर के ऊपर प्रिंट कर सकते हैं। ओके, इट गिव्स द बेस्ट क्वालिटी आउटपुट एंड इज़ एक्सपेंसिव।
तो जैसे कि हम इसमें बेस्ट क्वालिटी आउटपुट प्रिंट कर सकते हैं, जो इसमें प्रिंट आउट्स आते हैं बहुत ही अच्छी क्वालिटी के आते हैं, काफ़ी सुपीरियर क्वालिटी के आते हैं. दैट्स वाई दिस टाइप ऑफ प्रिंटर इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव. द स्पीड ऑफ दिस प्रिंटर इज़ गिवन इन ppm. ओके, सो हर प्रिंटर की अपनी कुछ स्पीड होती है, हर प्रिंटर की अपनी एफिशिएंसी होती है कि किस स्पीड से वो काम करता है. सो द स्पीड ऑफ दिस प्रिंटर इज़ गिवन इन ppm. ppm स्टैंड्स फॉर पेजेस पर मिनट, कि एक मिनट में कितने पेजेस का प्रिंट आउट निकाल सकता है, तो वो इसकी स्पीड बताती है. Okay, after laser printer there comes another type of printer that is called inkjet printer. This printer is a non-impact printer. तो जैसे हमने पढ़ा non-impact printer के बारे में, तो ये जो inkjet printer है, this comes under the non-impact printer that outputs text and images by spraying ink on the paper. जैसे हमने लेज़र प्रिंटर में पढ़ा था कि वहाँ पर हम लेज़र टेक्नोलॉजी का यूज़ करके प्रिंट्स निकालते हैं. इंकजेट प्रिंटर्स के अंदर हम क्या करते हैं, हम बेसिकली पेपर, जो भी आप पेपर इंसर्ट करते हो प्रिंटर के अंदर, तो आपका प्रिंटर वहाँ पे इंक को स्प्रे करके आपकी इमेजेस या टेक्स्ट को प्रिंट करता है. ठीक है. सो इंकजेट प्रिंटर्स प्रोड्यूस द टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स इन बोथ ब्लैक एंड वाइट एंड कलर. सो जो आपका इंकजेट प्रिंटर्स होते हैं, ये जो भी आपके प्रिंट आउट्स हैं उनको ब्लैक एंड वाइट में भी निकाल सकते हैं और कलर प्रिंट आउट्स भी निकाल सकते हैं. The speed of this printer is given in lines per minute. ओके, सो जैसे हमने लेज़र प्रिंटर के बारे में बात करी थी, उसके अंदर जो स्पीड थी वो ppm में होती है, दैट इज़ पेजेस पर मिनट. इंकजेट प्रिंटर्स के अंदर हमारी जो स्पीड होती है वो हम कैलकुलेट करते हैं लाइन्स पर मिनट के अकॉर्डिंग. ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट देयर कम्स अनदर टाइप ऑफ प्रिंटर दैट इज़ कॉल्ड डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर. ओके, सो दिस प्रिंटर इज़ एन इम्पैक्ट प्रिंटर. ठीक है, तो जो हमारे पास डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है वो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है. इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता है कि जो प्रिंटर हेड है और जो पेपर होता है उनका डायरेक्ट कांटेक्ट होता है. सो दिस टाइप ऑफ प्रिंटर कम्स अंडर इम्पैक्ट प्रिंटर. Okay, this printer is an impact printer that contains movable print head with pins that strike the ribbon. Okay, तो ये वाला जो प्रिंटर है इसके अंदर प्रिंटर हेड जो होता है वो आपका मूवेबल होता है. ठीक है, जिसके थ्रू प्रिंटिंग होती है वो मूव करता रहता है, और उस प्रिंटर हेड में क्या होती हैं, पिन्स होती हैं जो कि हर बार एक रिबन को स्ट्राइक करती हैं, प्लेसिंग अ डॉट ऑन द पेपर. हर बार जब भी आपका कुछ भी प्रिंट करना होता है तो वो क्या करता है, वो पेपर के ऊपर डॉट्स प्रोड्यूस करके आपकी चीज़ों को प्रिंट करता है. So these printers are less expensive, slow in working but are very noisy. So अगर आपने देखा हो कभी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को वर्क करते हुए, so these produce very much noise while working, and these are also very slow in working. That's why they are less expensive. The speed of this printer is given in CPS. So इन printers की जो speed है वो हम बताते हैं CPS के थ्रू, मीन्स करेक्टर्स पर सेकेंड, की एक सेकेंड में ये कितने करेक्टर्स को प्रिंट कर सकता है. सो इनकी स्पीड हम इस तरीके से बताते हैं. So here we discussed about the three types of printers that were laser printer, inkjet printers and dot matrix printer. Okay, so now we come to the another type of device that is known as speakers. So speakers, as all of you know that you have been seeing the speakers all around you for a long period of time. So speakers वो devices होते हैं जिसके थ्रू हम कुछ भी, कोई भी टाइप की म्यूज़िक, कोई भी टाइप का स्पीच या साउंड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं और हम सुन सकते हैं. सो स्पीकर्स की हेल्प से हम अपने सॉन्ग्स को लिसन कर सकते हैं. हम किसी भी टाइप की ऑडियो फाइल को या वीडियो अगर फाइल है उसकी हम ऑडियो को हम सुन सकते हैं थ्रू द स्पीकर्स. सो द स्पीकर्स आर आउटपुट डिवाइसेस दैट प्रोड्यूस म्यूजिक, speech or other sounds that your computer generates or processes. Suppose you are watching a movie or you are watching a video clip. So जो आपकी ऑडियो की आउटपुट आती है वो कहाँ से आती है, वो स्पीकर्स के थ्रू आती है. ओके, सो आफ्टर दैट कम्स अनदर टाइप ऑफ आउटपुट डिवाइस दैट इज़ नोन एज डेटा प्रोजेक्टर. Okay, so a data projector is an output device that projects the data being displayed on a computer screen on a larger screen so that the audience can see the image clearly. So many a times what happens, like suppose
अगर आपको अपनी फैमिली को लाइक इफ इन अ फैमिली ऑफ 10 यू वन वांट्स टू सी अ काइंड ऑफ मूवी, अगर आपको कोई मूवी देखनी है एंड देर आर 10 पीपल और मोर देन लाइक काफ़ी सारे लोग हैं, तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर ईच एंड एवरी वन कि वो एक ही कंप्यूटर स्क्रीन से वो सबको दिखाई दे, ठीक है। सो हमारे पास ये जो डिवाइस है दैट इज़ कॉल्ड डेटा प्रोजेक्टर, इससे हम क्या कर सकते हैं, हम ये जो डिवाइस है ये अपने कंप्यूटर स्क्रीन से कनेक्ट कर देते हैं और हम क्या कर सकते हैं, डेटा प्रोजेक्टर की हेल्प से जो भी हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर चल रहा है, ठीक है, उसको हम कनेक्ट करके एक बहुत बड़ी इमेज प्रोड्यूस कर सकते हैं और हम बहुत बड़े लेवल पे उस इमेज को बहुत क्लियरली देख सकते हैं। सो यू मस्ट हैव सीन इन द स्कूल और समवेयर एल्स, जो हम डेटा प्रोजेक्टर की हेल्प से हम किसी भी इमेज को, किसी भी मूवी को बहुत बड़े लेवल पर, बहुत बड़ी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। सो दिस इज़ द काइंड ऑफ device. A data projector is an output device that projects the data being displayed on a computer screen on a larger screen so that the audience can see the image clearly. Okay, after that comes another type of device, output device, that is smart board. Okay, a smart board is an output device that displays the image on a connected computer screen. ओके तो क्या करते हैं हम, जो स्मार्ट बोर्ड होता है ये भी एक टाइप का आउटपुट डिवाइस होता है जो कि वो इमेज को डिस्प्ले करता है, जो भी वो इमेज आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ रही है उसी से वो कनेक्ट होता है एंड थ्रू दैट इट शोज़ द इमेज यूजुअली वाया ए डेटा प्रोजेक्टर। सो बेसिकली जो आपका डेटा प्रोजेक्टर है वो एक मीडिएटर का काम करता है स्मार्ट बोर्ड के ऊपर इमेज शो करने के लिए। नोट्स रिटर्न ऑन इट कैन बी सेव डायरेक्टली ऑन द कंप्यूटर, ठीक है। तो जो भी हम स्मार्ट बोर्ड के ऊपर हम कुछ भी नोट्स लिखते हैं, कुछ भी काइंड ऑफ टेक्स्ट लिखते हैं, वो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ऑलरेडी आप कंप्यूटर में ऑटोमेटिकली जा करके स्टोर हो जाता है। ओके सो जो हमारे स्मार्ट बोर्ड है, जैसे इसका नेम सजेस्ट कर रहा है, जस्ट लाइक ग्रीन बोर्ड, ब्लैक बोर्ड और वाइट बोर्ड, सो स्मार्ट बोर्ड्स कैन बी यूज्ड इन क्लासरूम्स फॉर एफिशिएंट टीचिंग। ओके सो द स्मार्ट बोर्ड्स कैन बी हंग ऑन ए वॉल और माउंटेड ऑन ए स्टैंड। तो जो हमारे स्मार्ट बोर्ड्स हैं या तो वो हम वॉल की हेल्प से हम वॉल के ऊपर हैंग कर सकते हैं या फिर हम उसको किसी स्टैंड के ऊपर माउंट कर सकते हैं, मीन्स किसी स्टैंड के ऊपर हम उसको खड़ा कर सकते हैं, ठीक है। सो दीज वर अबाउट द स्मार्ट बोर्ड। So students, today we talked about the different types of output devices. Okay, so सबसे पहले हमने पढ़ा कि output devices क्या होते हैं, then we talked about the monitor, we talked about the printer, then printer में हमने 2 categories पढ़ी, one was impact printer, one was non-impact printer. After that we talked about the different types of printer, that is laser printer, inkjet printer, dot matrix printer. Okay, एंड आफ्टर दैट वी डिस्कस्ड अबाउट द स्पीकर्स की स्पीकर्स का हेल्प हम क्यों स्पीकर्स की हेल्प से क्या क्या हो सकता है। देन वी डिस्कस्ड अबाउट द यूटिलिटी ऑफ डेटा प्रोजेक्टर एंड इन द लास्ट वी डिस्कस्ड अबाउट द स्मार्ट बोर्ड. So I hope that this video will be useful to you and you will get to know about the different types of output devices that we can connect with our computer. Okay students, so that's all for today. I hope that you will watch the video and if any query comes up in your mind you can ask me anything. Okay, so thank you so much. Have a nice day.